Assalamu alaikum and good morning बच्चों. How are you all? Hope you all are fine. बच्चे open your books at page 12 along with your English text notebook. Books and notebooks open कर लें. पहले book पे question को समझें and after that write the question in your notebooks. Okay, today we are going to do unit 2 word study, page 12 of the book. Our today's question exercise A is comprehension. Find the words in the list that mean the opposite of those in the table. Opposite जो कि उलट हो. ओके हमने इन अल्फाज को के उलट लिखने हैं by choosing the words from here in this block, this table. Okay, so what should you do first? Just have a pencil in your hand, write the meaning, understand the meanings. After that it will be easy for you to write the meanings by yourself. Okay, so the first word is light. Light mean हल्का. एक भारी होता है, एक हल्का होता है. So we are going to write the meanings first. Okay बच्चे, पहले we should write the meanings, understand the meaning, तो फिर आपको easy होगा. And words opposites are the easy kind of English भी. Okay, light, write the meaning, हल्का. Okay, night, रात. अगली, एक खूबसूरत होता है, एक बदसूरत होता है. तो अगली मीन बदसूरत. एक्सपेंसिव, कीमती, प्रीशियस. डेड, मुर्दा. रॉन्ग, गलत. सॉफ्ट, नरम. ओल्ड, पुराना. स्वीट, मीठा. स्वीट चॉकलेट. स्ट्रेट, सीधा. Okay, now the first one is day. So what you write the meaning of the word day? दिन. day बोलते हैं बच्चे दिन को. So what will be its opposite? The opposite will be night. The book has mentioned. Okay, heavy. heavy means भारी. heavy means भारी. ओके तो यहाँ पे हमने भारी लिखा है, तो इसका उलट क्या होगा? हल्का. ओके, राइट, लाइट, LIGHT, लाइट. लाइट. ओके, राइट, सही, दुरुस्त. तो हमने मीनिंग ऊपर क्या लिखी है? गलत. कहाँ लिखा है? ओवर हेयर. रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग. हार्ड. हार्ड मीन्स सख्त. हार्ड मीन्स सख्त. सख्त का आता है नरम. तो नरम हमने कहाँ लिखा है बच्चे? सॉफ्ट. ओके, सख्त, नरम. हार्ड, सॉफ्ट. चीप, सस्ता. चीप मीन सस्ता, अर्जान. ओके, तो इसका उलट क्या आएगा? एक्सपेंसिव, कीमती. EXPENSIVE, एक्सपेंसिव. ओके, द नेक्स्ट टेबल इज ब्लॉक इज अलाइव, जिंदा. अलाइव मीन जिंदा. डेड, मुर्दा. ओके, DEAD, डेड. ब्यूटीफुल, खूबसूरत. हमने ऊपर लिखा है बदसूरत, तो उसको उर्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बदसूरत, अगली. UGLY, अगली. बिटर. बिटर, कड़वा, विच इज नॉट स्वीट. तो कड़वे के लिए क्या यूज होता है? स्वीट. ऑपोजिट. अच्छा,
बच्चे SWEAT जब आप लिखते हो दैट इज स्वेट, उसको स्वेट हम प्रोनाउंस करेंगे और उसका मतलब होगा पसीना। ये स्वीट है, मीट। अच्छा, न्यू नया, नया का उलट क्या होगा? ओल्ड, पुराना। ओके, OLD ओल्ड। फिर है कर्ली, घुंघरियाले, जिस तरह हम कहते हैं कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, तो स्ट्रेट के लिए वर्ड, कर्ली के लिए ऑपोजिट आएगा स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। ओके, राइट द स्पेलिंग्स करेक्टली। ओके, like this. Okay, as you understand the meanings of these words, so prepare the page in your English notebook, write down the topic, unit, exercise. After that, write the question, write this one table in 2 lines, and after that draw the line in the middle of the notebook, prepare the page and write all the words like this. Words opposites heading दे दे. Look over here. It's your today's work. बच्चे, we did exercise A. Now we are going to do exercise B of page 12 of unit 2. Okay, the above was exercise A, which we done. Now it's the turn of exercise B. Open your books at page 12 and open your notebooks as well of English. The question is vocabulary. Okay, find the words in one block. Block number 1 and 2. Using the clause. Clause इशारे जो आपको दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करने हैं. Put them together to make a real compound word. Compound जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है और एक नया वर्ड बनता है, एक नई चीज़ बनती है. केमिस्ट्री में भी वर्ड यूज़ होता है, बॉन्डिंग वगैरह में, केमिकल जब एक आपस में मिलते हैं. ओके, यहाँ पे कंपाउंड का मतलब है जब दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती है और एक नई चीज़ बनती है, दैट इज़ कंपाउंड. ओके, क्वेश्चन का मतलब है कि ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 को रीड करें. इसमें और इसमें आपको कुछ इशारे मिलेंगे. ओके, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 में यू विल फाइंड सम क्लॉज. ओके, द टर्म्स हैव बीन गिवन, सो यूज योर माइंड्स. दिमाग इस्तेमाल करेंगे. ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से जो बनता है तो एंड में यहाँ पे कंपाउंड वर्ड बनेगा हमारे पास. जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन. हैव अ कप इन द मॉर्निंग. नाउ cup is used for taking tea. Have a cup in the morning. हम सुबह एक कप लेते हैं तो क्या लेते हैं? That is tea, चाय. Okay, use this to eat your cereal. दलिया वगैरह जब आप उससे खाते हैं तो वो हम खाना किस चीज़ से खाते हैं? Eat mean खाना, स्पून से. तो टी और स्पून से मिलकर वर्ड बनता है टी स्पून. टी स्पून इज आवर कंपाउंड वर्ड. Okay, now be active, be fresh, and use your minds. Listen carefully. Plants need this to grow. Plants पौधे need ज़रूरत होती है grow बढ़ने के लिए. हम पौधों को क्या चीज़ देते हैं जिससे वो बढ़ते हैं? एक तो हम उन्हें खाद देते हैं ना. Okay, that is good for plants. And what else? Water. Very nice boys, very nice. Water, good. आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट है. देखें, water. Humpty Dumpty had a great one. Humpty Dumpty पोइम सुनी है आप लोगों ने? ओके, Humpty Dumpty के पास क्या है? Do you remember? That is brain. BRAIN, brain. Okay, what will be the compound word now? Water, brain. Water, brain. So write over here. कोई स्पेस नहीं. अच्छा, वाटर ब्रेन. अब वाटर ब्रेन बोलते किसे हैं?
इट्स अ डिजीज, वुल्फ को लगती है भेड़ियों को. ओके, वाटर ब्रेन भेड़ियों की एक बीमारी है. लुक, यू हेयर विद इट, आप किस चीज से सुनते हैं? विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स टू लिसन विद, टू हेयर विद? हमारे कान. वेरी गुड, EAR, ईयर. हम कानों से सुनते हैं. यू वेयर इट ऑन अ फिंगर, हाथ में, उंगली पे आपकी मदर्स क्या पहनती हैं? वो फिंगर में कौन सी चीज पहनती है? कभी कभी ज्वेलरी में भी होता है, कभी कभी आर्टिफिशियल भी होते हैं, बहुत प्यारे. दैट इज रिंग. वेरी नाइस, दैट इज रिंग. RING, रिंग. अब कंपाउंड वर्ड क्या है? ईयर रिंग. ईयर रिंग जो हाथों में पहनते हैं बच्चे, उसके लिए सिंगल रिंग का वर्ड यूज होता है, लेकिन जो कान में पहना जाता है उसे ईयर रिंग बोलते हैं. ओके, गोल. The fourth one is it's on the end of your arm. आपके हाथ के बिल्कुल लास्ट पे क्या चीज है जो कार्टिलेज से बनी है? कार्टिलेज जो हम काटते हैं. एट द एंड ऑफ योर हैंड, दैट इज नेल. वेरी नाइस, कार्टिलेज से बना है तो ये नेल है. ओके, अ बेबी डज दिस विद इट्स रेटल. रेटल बच्चे खटखट की जो आवाज होती है. नाइस, नेल कट. कंपाउंड वर्ड है नेल कट. वेरी गुड बॉयज. ओके, नाउ प्रिपेयर द पेज. एज यू प्रिपेयर द पेज फॉर द एक्सरसाइज A, इसी तरह एक्सरसाइज B के लिए भी पेज प्रिपेयर कर ले. गिव द टॉपिक, यूनिट. Exercise B, write the question, write the page number. Okay, prepare the page like this. In the first line you will write the term which is given, and in the next line you will write the answer. आप ऐसे भी पेज प्रिपेयर कर सकते हो. If you want to draw a table like this which is in your book, so you can do it as well. Okay, it's a turn of your homework. बच्चे, लर्न क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट 2. बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स है. अच्छा, लर्न दैट. लुक केयरफुली. वाटर ब्रेन, ईयर रिंग, नेल कट. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.